Assalamualaikum dear student, I am Dr. Rafat Aziz from Department of Dental Material Sciences of LCMD, Liaquat College of Medicine and Dentistry. Today we learn how to make Adams class in easy steps. Adams class is the most versatile class amongst all the class. So it is used for the retentive purpose, especially in removable prosthesis of orthodontic so like a retainer, and unlike C-shaped glass, it is made on the fully or partially erupted tooth, especially on molars and premolars, but it is also made on the incisor tooth also, but commonly it is made on the molar and premolar. So let's start the fabrication of Adams glass. Before we start, Adams glass, we discuss about the component of the Adams glass. Adams glass has three components. Number one, brush, two arrowheads, and a retentive arm. So for the fabrication of the Adams glass, we need some instruments. This is Adams glass, Adams plier, straight plier, wire cutter, and these cast models, and stainless steel 0.7 mm wire. All these instruments needed for the fabrication of the Adams glass, and marker for the marking onto the cast. So now we take a small piece of wire, minimum 6 inches of wire, and cut it from the wire cutter like that. Take it and pull the one end of the wire from the Adams plier from the end and straighten up the wire like that. The pressure applied from the two fingers or from the one thumb onto the wire against the curvature means कि जहां आपकी वायर बेंड हो रही है वहां से उसके अगेंस्ट आप प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि ये हमें एक स्ट्रेट रफली स्ट्रेटन, जरूरी नहीं है कि आप टोटली स्ट्रेटन हो, रफली स्ट्रेटन वायर फॉर द फैब्रिकेशन. नाउ आफ्टर स्ट्रेटन द वायर we will take a cast or model. Now we will mark some reference point onto the cast of our model, which is two vertical lines from the tip of the mesiobuccal cusp downward towards the cervical line, and again next tip of the distobuccal cusp downward onto the cervical line. So these two lines mark on your 1/6 tooth of upper cast model, and one horizontal line in between these two lines from where the cervical and the middle third of the tooth meet, somewhat here. Okay. These lines are the reference point. ये lines हमें help करेंगी हमें हमारे Adams glass को fabricate करने में, और हम अपनी Adams glass को इन सर्वे लाइन को फॉलो करते हुए हम एडजस्ट करेंगे. Now वो पीस जो हमने कट किया था पहले और स्ट्रेट किया था वायर का, उसको हम लेके फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेंटर में से, जस्ट सेंटर में से हम इसको पकड़ेंगे और इसको जस्ट 90 डिग्री फ्रॉम योर थंब. और ये बात याद रखें कि पॉइंटेड शार्प पॉइंट देने के लिए हम थंब और प्लाई के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं रखते. थंब से हम एक 90 डिग्री का बैंड जस्ट लाइक दैट देंगे, और इसको अब हमने जो मार्क किया है अपना रेफरेंस पॉइंट, इस वर्टिकल लाइंस उसके ऊपर रखेंगे और हम देखेंगे हमारी लाइन दूसरी लाइन कहाँ पर मीट कर रही है. उस लाइन को हम अगेन लाइक दैट, इस लाइन को हम अगेन मार्क कर लेंगे अपनी सेकेंड वर्टिकल लाइन को अपनी वायर पे. और फिर यहाँ से हम जो है एडम्स प्लायर, जो कि हम इंट्रो में भी बता चुके हैं, एडम्स प्लायर बनाया गया था एडम्स क्लास को बनाने के लिए, उसकी मदद से ये पूरा क्लास बनेगा. और नाउ नेक्स्ट बेंड देंगे अगेन 90 डिग्री बेंड, सेम लाइक जैसे हमने पिछली दफा दिया. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि हम यहाँ भी देख सकते हैं हमने बना के रखा है. फर्स्ट स्टेप हमारा पहला कंपोनेंट हमारे एडम्स क्लास का जो कि ब्रिज कहलाता है. दिस इज ब्रिज ऑफ आवर एडम्स क्लास. ये हमारा बन गया है. ठीक है. इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एडम्स प्लायर को लेके इसके जो 90 डिग्री का बेंड दिया है उसके बिल्कुल कॉर्नर से जहां से बेंड पॉइंट हुआ है वहां से हमने करके इसको अगेन 190 डिग्री बेंड देना है अगेंस्ट द ब्रिज. अगेंस्ट द ब्रिज मींस कि हम इसको अगेंस्ट ब्रिज के अगेंस्ट हम इसको 90 डिग्री का बेंड एक और दे देंगे, और फिर इसी 90 डिग्री के बेंड को जो देने के बाद इसको बैक साइड पे हम मोड़ देंगे, बिल्कुल बैक पे ले जाएंगे. जैसे ये फॉरवर्ड थे इसको हम बैकवर्ड पे ले जाएंगे, और सेम यही चीज हम करेंगे दूसरी साइड पे. ये चीज जो हमें देगी ये हमें हमारे सेकंड कंपोनेंट ऑफ आवर एडम्स क्लास जो कि कहलाता है एरोहेड. These two arrowheads made, this is the second part of our
ये एरोहेड्स हमारे बन गए हैं, एरोहेड। अब हम इन एरोहेड्स को एडम्स प्लायर से या स्ट्रेट प्लायर से स्क्वीज करेंगे। जस्ट स्क्वीज द एरोहेड। स्क्वीज करने के बाद इनकी जो वायर्स आपस में क्रॉस हो गई हैं, इनको हम खोल देंगे स्ट्रेट। अब ये एरोहेड जो बने हमारे, इसको हम 90 डिग्री के एंगल पे, ब्रिज के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हम मोड़ देंगे, लाइक दैट, बेंट लाइक दैट। एंड सेम थिंग हैपन हियर। दूसरी साइड पे जो चीज हम एक साइड पे कर रहे हैं, सेम वही चीज हम दूसरी साइड पे रिपीट करेंगे इस तरह से। तो ये कुछ हमारा इस तरह की पोजीशन आ जाएगी, लाइक दैट। और ये हमारे कंपोनेंट बन जाएंगे 2 एरोहेड। अब हम अपने एडम्स क्लास के 2 कंपोनेंट बना चुके हैं, एक ब्रिज और 2 एरोहेड। अब लास्ट कंपोनेंट इसमें बनेगा जो कि कहलाता है रिटेंटिव आर्म। अच्छा, उससे पहले मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट के लिए एक की स्टेप है वो बताती हूँ, ताकि वो जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा एडम्स क्लास बहुत अच्छे से अडैप्ट हो जाता है। इसमें करना ये जो हमारी फुल लेंथ है एरोहेड की, ये फुल लेंथ है एरोहेड की, तो इसकी हाफ लेंथ पे हम मार्क करेंगे एक मार्क, इसका हाफ लेंथ। जो मार्किंग हमने हाफ लेंथ पे की है, वहां से हमने उस मार्किंग से हम एरोहेड को पकड़ेंगे लाइक दैट। यानी कि जो हमारा एडम्स प्लायर है वो 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए इस तरह से, और ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी वायर्स। ये हमने हाफ लेंथ पे पकड़ा और हम एक 90 डिग्री का बेंड देंगे टुवर्ड्स आवरसेल्फ। एंड इसी आवरसेल्फ जो हमने अपनी तरफ जब वायर बेंड किया 90 डिग्री का, इसको हम जस्ट स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। स्ट्रेट करने के बाद हमें कुछ इस तरह की पोजीशन मिल जाएगी, जस्ट लाइक दैट। यानी कि ये हमने 90 डिग्री का बेंड दिया था अपनी तरफ, और फिर अब हम इसको स्ट्रेट कर देंगे लाइक दैट। सही। इसके बाद ये हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हम इसको अपने मॉडल पे चेक करेंगे कि ये भी ख्याल रखें, जो ये एरोहेड है ये इंटरडेंटल स्पेसेस में, जो मीजियो डिस्टल इंटरडेंटल स्पेसेस हैं उनमें आनी चाहिए। ये हमारा ब्रिज जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की थी उस पे आ रहा है, और जो 2 एरोहेड हमने बनाए हैं वो एम्ब्रेशर के अंदर जा रहे हैं, लाइक ये कि इससे हमें पता चला कि ये बिल्कुल सही, हमारी फैब्रिकेशन बिल्कुल सही जा रही है। अब हम मार्क करेंगे अपना पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट है वो जहां पर कांटेक्ट है 2 मीजियल और डिस्टिक कांटेक्ट एरिया पे, जहां से वायर ऊपर उठ रही है, वहां से हम मार्क करेंगे। और वहां से मार्क करने के बाद हम उस मार्किंग पे टेक है एडम्स क्लास एंड 0.5 मिलीमीटर बिलो फ्रॉम द मार्किंग, इसको हम अगेन एक नॉट 90 डिग्री, समवॉट 60 और 70 डिग्री बेंड दे देंगे लाइक दैट। सो द सिचुएशन इज लाइक दैट। ये हमारा इस तरह का, जब हमने 90 डिग्री बेंड दिया तो हमारा इस तरह की कोई पोजीशन बन जाएगी लाइक दैट। अब ये हमारा बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है माउथ हमारे मॉडल पे लाइक दिस। अगेन हम क्या करेंगे कि ये हमने यहाँ पर मॉडल हमारा अगेन हो रहा है। अब हम मार्क करेंगे पैलेटल कांटेक्ट एरियाज पे, जहां पर हमारा वायर उठा हुआ है, वहां से यहाँ से कांटेक्ट एरिया के बाद हमने इसको बेंड करना है अगेन समवॉट 60 to 70 डिग्री डाउन लाइक दैट एंड लाइक दैट। सो दिस इज एडम्स क्लास। यहाँ पर हमें दोनों रिटेंटिव आर्म, जो हमारी एडम्स क्लास का 3rd कंपोनेंट है, वो मिल गए हैं। अब हमने क्या करना है, जो एक्सेस वायर है उसको कट कर देना है अपने वायर कटर से। और वायर कटर से को यूज करते वक्त याद रखें हमेशा इसको नीचे रखें और दोनों हैंड से आप इसके कोई भी हैंड फ्री ना छोड़ें, अदरवाइज ये उड़ के किसी की आंख में भी लग सकता है वायर। कट करने के बाद अब हमने क्या बनाना है, एडम्स क्लास हमारा रेडी है, लेकिन अब हमने करना यह है कि इसमें बनाने हैं रिटेंटिव टैग्स। रिटेंटिव टैग्स याद रखिए, रिटेंटिव टैग्स जो है हमेशा मीजियल होते हैं, मीजियली बेंड होते हैं। मीजियली बेंड करके हम रिटेंटिव टैग बना देंगे। और ये रिटेंटिव टैग क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं हम कि हमारे जो एक्रेलिक में जो प्लेट है वो एनकरेज रहे, उसकी रिटेंशन रहे। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो जो एक्रेलिक में से ये निकलने के इसके चांसेस होते हैं। देखें ये हमारा ब्रिज फर्स्ट कंपोनेंट, दूसरे एरोहेड दोनों जो एम्ब्रेशर्स में जा रहे हैं, यानी कि मीजियल एंड डिस्टल अंडरकट एरियाज में जा रहे हैं। नेक्स्ट इज रिटेंटिव आर्म ऑफ आवर एडम्स क्लास। नाउ द fully adapt to the model our Adams class. This is now our Adams class is ready for the performance.
दिस इज ऑल अबाउट आवर एडिट ग्लास फैब्रिकेशन। होपफुली कि दिस इज हेल्पफुल इन योर स्टडीज, और वहाँ जहाँ पर आपको इंशाल्लाह आपको लैब में प्रैक्टिकल्स में हेल्पफुल होगी ये वीडियो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।